Welcome all to the channel Competitivepedia. Here we are going to discuss important current affairs of November third week. So let's begin. First of all, who are the target audience? All the SSC aspirants, railway aspirants, aspirants of any other state exams, state public service commission aspirants, other one-day exams aspirants, or anyone who wants to be aware of the current events. They are mostly welcome. So the first question is, who has become the goodwill ambassador for the United Nation World Food Program? तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ए आयुष्मान खुराना, बी बालमुकुंद शर्मा, सी डैनियल या डी रजत त्रिपाठी? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डैनियल ब्रूहल. The correct answer is here Daniel. He is a Spanish German actor. His responsibility will be to inform about the main drivers of hunger along with showing the efforts of United Nations World Food Program in two ways, in tackling both the needs and the root cause of hunger. So this will be his responsibility. Now United Nations World Food Program headquarters is in Rome, Italy, and United Nations World Food Program was founded in 1961. Next question is, these questions are very important, so try to learn it. In the IRCTC's Ramayana circuit train list, a new destination has been added by the name Bhadrachalam. So the question is, where is it located? A. Mumbai, B. Telangana, C. Kolkata या D. Tamil Nadu? So the correct option is B. Telangana. So here it is answer Telangana. So Bhadrachalam is also home to Shri Sita Ramachandra temple. Now Telangana is a state in southern India. The capital of Telangana is Hyderabad. Governor of Telangana is Tamilisai Sundararajan. CM of Telangana K. Chandrasekhar Rao. Telangana was founded on 2nd June 2014. How many districts are covered in Telangana? 33. Here the Rajya Sabha has 7 seats and the Lok Sabha has 17 seats. Clear? The next question is, the new Secretary General of the Upper House of Parliament is, now Upper House of Parliament is called Rajya Sabha. Okay. Now who is the new Secretary General? Upper House of Parliament जो राज्य सभा है उसका नया सेक्रेटरी जनरल कौन है? ए मुख्तार अब्बास नकवी, बी अधीर रंजन चौधरी, सी नरेंद्र सिंह तोमर और डी पीसी मोदी? So the correct answer is option D, PC Modi. Here it is PC Modi. He is also the former chairman of CBDT, Central Board of Direct Taxes के भी former chairman रह चुके हैं. इन्होंने किसको replace किया? He replaced PPK Ramacharulu, and currently this person is advisor in the Rajya Sabha secretary. It is his current posting. Now who is the Rajya Sabha chairman? It is M. Venkaiah Naidu, also our vice president. Next question is, army chief of which country was conferred with an honorary rank of General of the Indian Army by the President of India? तो किस देश के आर्मी चीफ को आर्मी और जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी के ऑनररी रैंक से हमारे प्रेसिडेंट ने अवार्ड किया है? ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका या फिर डी बांग्लादेश? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नेपाल. तो हियर इट इज नेपाल. तो नेपाल के आर्मी चीफ हैं जनरल प्रभु राम शर्मा. इनको ऑनररी रैंक जो कि है जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी से नवाजा गया है और ये किया है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा. ये जो ट्रेडिशन है, दिस ट्रेडिशन इज बीन इन प्रैक्टिस सिंस 1950, 1950 से ये चला आ रहा है. तो नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू. नेपाल के पीएम का नाम है शेर बहादुर देउबा. जो नेपाल की प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी. और नेपाल किस किस जगह इसका मेंबरशिप है? तो यूनाइटेड नेशन, सार्क और बिम्स्टेक का ये नेपाल क्या है? मेंबर है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काशी विश्वनाथ टेम्पल
is located at which state where idol of goddesses अन्नपूर्णा is said to be installed? तो जो अन्नपूर्णा माता की जो मूर्ति है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में रखी गई है। ये टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? ए शिमला, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। सो हियर इट इज उत्तर प्रदेश। इट इज एन 18th century old idol. It was stolen about 100 years ago and retrieved from Canada. ये लगभग 100 साल पहले चोरी हो गई थी और अभी ये हाल में कनाडा से मिली है। इसका जो हाइट है वो 17 सेंटीमीटर हाइट है, 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है और 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ। यूपी के गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। टोटल यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 75। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीट्स हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 31 सीट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कमीशन फ्रॉम इंडिया? इंटरनेशनल लॉ कमीशन का इंडिया से किसे मेंबर अपॉइंट किया गया है? ए विनोद मेहता, बी रविशंकर प्रसाद, सी बिमल पाटिल या फिर डी राशिद खान? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिमल पटेल। सो इट इज बिमल पटेल को अपॉइंट किया गया है। इनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया गया है एंड इस 5-year टर्म विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023। यहाँ से इनका 5 साल का कार्यकाल शुरू होगा। बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड इन विच सिटी? रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है ये किस शहर में लोकेटेड है? ए चेन्नई, बी अहमदाबाद, सी सूरत या फिर डी भोपाल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह इट इज भोपाल। तो पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन एंड नाउ इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नाउ दिस रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड इन भोपाल, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में, एंड द स्टेशन वाज इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ है? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ है। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पर लोकसभा की 29 सीट्स हैं और यहाँ पर राज्यसभा की 11 सीट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज सेंटर हैज़ ब्रॉट एन ऑर्डिनेंस फॉर एक्सटेंडिंग द टेन्योर ऑफ ईडी एंड सीबीआई डायरेक्टर्स अप टू। तो सेंटर ने एक ऑर्डिनेंस लाया है जिसके माध्यम से वो ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड कर रही है। तो कितने साल के लिए एक्सटेंड कर रही है? ए 3 years, बी 5 years, सी 7 years और डी 6 years? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 5 years। तो 5 साल के लिए उसने एक्सटेंड कर रहा है ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो सीबीआई की बात करें तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का फाउंड हुआ था तो 1 अप्रैल 1963 में फाउंड हुआ था। सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इट वाज फाउंडेड ऑन 1 May 1956। इन ईडी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और ईडी की जो पेरेंट एजेंसी है जिसके अंडर ये आती है वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट वंगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? वंगला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी मेघालय? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मेघालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो मेघालय में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये जो वंगला फेस्टिवल है इसको कहते हैं द 100 ड्रम्स। ओके, इसको 100 ड्रम्स के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है गारोस ट्राइब की और हर साल इसको मनाया जाता है टू ऑनर सलीजोंग। इनके ऑनर में इसको मनाया जाता है। सलीजोंग कौन है? द सन गॉड ऑफ गारो। जो वहाँ की गारोस ट्राइब है उसके जो सन गॉड को ये सलीजोंग कहते हैं। इनके ऑनर में ये मनाया जाता है। तो मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। सीएम मेघालय के कॉनरैड सैंगमा।
जो गवर्नर है मेघालय के उनका नाम है सत्यपाल मलिक। और मेघालय राज्य का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। राज्यसभा की यहाँ पर कुल 1 सीट है और लोकसभा की यहाँ पर 2 सीट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021? जो आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप हुआ है 2021 का, उसके विनर कौन है? ए पाकिस्तान, बी इंडिया, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी न्यूजीलैंड? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किसको डिफीट किया है? न्यूजीलैंड को 8 विकेट से। जो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं वो मिचेल मार्श हैं और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने हुए हैं डेविड वार्नर। ये जो वेन्यू हुआ था आईपीएल का 2021 का T20 का, वो ओमान और यूएई में हुआ था। अभी तक जितने भी ये T20 के मैच हुए हैं इंटरनेशनल, उनमें वेस्ट इंडीज़ ने 2 बार इसको जीता है, एक 2016 में और एक 2012 में। और इंडिया ने अभी तक एक ही टाइटल जीता है 2007 में। इंडिया विनर हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट में। उस समय जो इंडिया का कैप्टनसी संभाल रहे थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी। और अभी तक आईपीएल का जो T20 है आईसीसी इंटरनेशनल का, उसको वेस्ट इंडीज़ ने 2 बार जीता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, विनर ऑफ 2021 F1 ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो F1 ब्राज़ीलियन जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2021, उसके विनर कौन है? ए मैक्स वर्स्टैपन, सी वॉल्टेरी बोटास, ऑप्शन बी वॉल्टेरी बोटास, सी लुइस हैमिल्टन या डी प्रियंका मोहिती? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। या इट इज लुइस हैमिल्टन। इस ग्रैंड प्रिक्स को F1 साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये ब्राज़ीलियन ना पूछे, अगर ये ना दे, ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स ना लिखा हो, अगर उसकी जगह पे ये लिखा हो F1 साओ पोलो, तो ये भी एक ही है। तो लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? ग्रेट ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज अवॉर्डेड विद द 2021 इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज अवार्ड? तो किसको इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज अवार्ड 2021 का दिया गया है? ऑप्शन ए विहान अग्रवाल, ऑप्शन बी नव अग्रवाल, ऑप्शन सी बोथ ए बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी। विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल दोनों को 2021 का इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज अवार्ड दिया गया है। इट इज़ दोनों ही दिल्ली बेस्ड टीनेज ब्रदर्स हैं और इन्होंने जीता है 17th एनुअल इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। क्यों दिया गया है? फॉर देयर इनोवेटिव इन्वेंशन फॉर टैकलिंग पोल्यूशन इन देयर होम सिटी बाय रिसाइकलिंग हाउस होल्ड वेस्ट। इसके कारण इन्हें यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, Baba Saheb Purandare, a renowned historian who has recently passed away, has written extensively on which of the following rulers? जो बाबा साहेब पुरंदरे हैं, जो एक विख्यात हिस्टोरियन हैं जिनका हाल ही में शरीर शांत हुआ है, इन्होंने किस रूलर के बारे में बहुत ही एक्सटेंसिव वे से लिखा है? तो ऑप्शन है देवी अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन सी सावरकर या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी? तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा है बहुत एक्सटेंसिव वे में। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन हैं? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी। जो महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 1 मई 1960 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Simtex 21 which is a trilateral maritime exercise held between which country? तो Simtex 21 जो एक ट्राइलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज है वो किन देशों के बीच में हुआ है? ऑप्शन ए इंडिया सिंगापुर थाईलैंड, या ऑप्शन बी इंडिया सिंगापुर जापान, ऑप्शन सी इंडिया सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन डी इंडिया सिंगापुर या रशिया? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंडिया सिंगापुर एंड थाईलैंड के बीच में ये सिमटेक्स 21 ट्राइलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है। तो इस आंसर ये इंडिया सिंगापुर थाईलैंड।
ये थर्ड एडिशन इस एक्सरसाइज का एंड इट इज बीन हेल्ड एट अंडमान सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 16 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 16 दिसंबर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 16 ऑफ नवंबर को ये नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। 16 नवंबर है। क्यों मनाया जाता है? टू सेलिब्रेट फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस इन इंडिया। फ्री और रिस्पॉन्सिबल प्रेस जो हमारे भारत की है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है। विच स्टेट हैज रिकॉग्नाइज कैसर हिंद एज स्टेट बटरफ्लाई? किस राज्य ने कैसर हिंद को अपने यहाँ का स्टेट बटरफ्लाई रिकॉग्नाइज किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने कैसर हिंद को अपने यहाँ का स्टेट बटरफ्लाई रिकॉग्नाइज किया है। कैसर हिंद का साइंटिफिक नेम क्या है? टाइनोपेल्पस इम्पेरियलिस। इसका मतलब होता है एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। जो कैपिटल अरुणाचल प्रदेश का वो है ईटानगर। टोटल यहाँ पर कुल मिला के 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है और लोकसभा की यहाँ पर 2 सीट्स हैं। ये स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ? 20 फरवरी 1987 को ये स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? नेक्स्ट है द पूर्वांचल एक्सप्रेस हैज बीन इनॉगरेटेड इन विच स्टेट बाय द पीएम श्री नरेंद्र मोदी। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस का किस राज्य में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह हुआ है एंड इनॉग्रेशन वाज डन एट करवल खेरी इन सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो सुल्तानपुर जिला में जो करवल खेरी है वहाँ ये इनॉग्रेशन हुआ है। ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगी लखनऊ को गाजीपुर के साथ। क्लियर? और टोटल जो इसका लेंथ होगा वो होगा 341 किलोमीटर। द पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। जो किस राज्य सरकार द्वारा जो पक्के टाइगर रिजर्व 2047 का जो डिक्लेरेशन है क्लाइमेट चेंज पर उसको अप्रूव किया गया है? तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। और क्यों किया गया है? इट एम्स टू प्रमोट क्लाइमेट रेसिलिएंट डेवलपमेंट इन द स्टेट। क्लाइमेट रेसिलिएंट डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए अपने राज्य में इसको ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है महिला जयावर्धना हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो भाई आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 जन को इंडक्ट किया गया है, उसमें एक है महिला जयावर्धना। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? इंडिया, श्रीलंका, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़। सही आंसर है आपको ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका से हैं। तो तीनों की लिस्ट यहाँ पर है। महिला जयावर्धना जो श्रीलंका से हैं, शॉन पॉलक जो कि साउथ अफ्रीका से हैं और जेनेट ब्रिटेन जो कि इंग्लैंड से हैं। इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। कीप इन माइंड। नाउ which among the given films will be screened at the Indian Panorama segment in the 52nd International Film Festival। जो कि 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, उस फिल्म फेस्टिवल में कौन सी फिल्म है जिसको दिखाई जाएगी एट द इंडियन पैनोरामा सेगमेंट? ऑप्शन ए जय भीम, ऑप्शन बी सरदार उधम, ऑप्शन सी कूज हंगल या फिर ऑप्शन डी थलाईवी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कूज हंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कीप इट इन माइंड। तो कूज हंगल इसका सही आंसर है। ये एक तमिल फिल्म है और ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री भी है फॉर अकेडमी अवार्ड फॉर ऑस्कर्स। ठीक है, ऑस्कर्स में ये इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री वाली फिल्म है कूज हंगल। विच कंट्री विल होस्ट द ICC 2025 चैंपियंस ट्रॉफी? तो ICC 2025 चैंपियन ट्रॉफी कौन सा देश होस्ट करेगा? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। जो इसका करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। फॉलोइंग इवेंट जो इंडिया होस्ट करेगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा श्रीलंका के साथ। 2031 का ODI वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा बांग्लादेश के साथ। और 2029 का चैंपियन ट्रॉफी इंडिया सिंगल हैंडेडली होल्ड करेगा, वहाँ पर किसी का कोऑपरेशन नहीं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और जो लास्ट चैंपियन ट्रॉफी हुआ था वो साल 2017 में हुआ था लास्ट, और कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम UK में। और अब 2025 का कहाँ पर होगा? होस्ट पाकिस्तान द्वारा होस्ट होगा। और लास्ट 2017 का किसने होस्ट किया था? UK ने। क्लियर? Who has been appointed as the chairman of the International Cricket Council Cricket Committee? तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट कमेटी है उसके चेयरमैन किसे बनाया गया है? ए रवि शास्त्री, बी सौरव गांगुली, डी MSD या फिर डी गौतम गंभीर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को बनाया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया था अनिल कुंबले को रिप्लेस किया है। जो ICC क्रिकेट कमेटी है इसका मेन काम है टू लुक आफ्टर द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द गेम। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दुबई में है। और ICC के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज फर्स्ट पॉड होटल वॉज इनॉगरेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन? जो भारतीय रेलवे का पहला पॉड होटल है ये किस रेलवे स्टेशन पे इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन ए हावड़ा रेलवे स्टेशन जो कि वेस्ट बंगाल में है, ऑप्शन बी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या फिर ऑप्शन डी देहरादून रेलवे स्टेशन। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो इसको यहाँ पर आंसर है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अब क्या होता है पॉड होटल्स? तो पॉड होटल्स बेसिकली कैप्सूल होटल्स होते हैं। ठीक है, इट फीचर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बेड साइज रूम्स और इन्हीं को हम कहते हैं कैप्सूल्स। इट इज़ अफोर्डेबल फॉर पीपल हु डू नॉट रिक्वायर मोर एक्सपेंसिव रूम्स विच आर ऑफर्ड बाय द कन्वेंशनल होटल्स। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रूम्स की दरकार नहीं है जो प्राय होटल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो उनके लिए कैप्सूल होटल्स जिसको हम बोलते हैं पॉड होटल्स, ये क्या है? अफोर्डेबल है। एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज राव साहेब दानवे। इनके द्वारा इसको इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट है ना इंपॉर्टेंट, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? ए देहरादून, बी कोची, सी पुणे या डी गुरुग्राम। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी गुरुग्राम। यहाँ पर सही आंसर है गुरुग्राम। क्यों इसको किया गया है? टू नर्चर फिशरी स्टार्टअप्स अंडर रियल मार्केट लेड कंडीशंस, इसलिए इसको किया गया है। इसको इस नाम से भी जाना जाता है LINAC NCDC फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर LIFIC। अगर ऑप्शन में है तो ये नाम भी आप टिक कर सकते हैं। इसको इनॉग्रेट किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, इनके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है इस चीज़ का। नाउ राशन आपके ग्राम एंड सिकल सेल मिशन लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी इन विच स्टेट? तो राशन आपके ग्राम और सिकल सेल मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश।
तो आंसर है मध्य प्रदेश। आई मैंने हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर का नाम आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे आंसर बताएंगे कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है और उनके गवर्नर कौन है। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी थंजावुर या फिर ऑप्शन डी मदुराई। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी थंजावुर। तो थंजावुर है, इसको लॉन्च किया है बाय द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और ये तमिलनाडु में है। थंजावुर जो शहर है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950। जो यहाँ के सीएम हैं तमिलनाडु के वो हैं MK स्टैलिन। जो यहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है RN रवि। टोटल लोकसभा की यहाँ पर 39 सीट्स हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 18 सीट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन चोजन एज द कोविड वैक्सीन एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के जो कोविड वैक्सीन एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? ए सलमान खान, बी अक्षय कुमार, सी अजय देवगन या डी अनुपम खेर। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सलमान खान। ये सलमान खान, ही इज अ बॉलीवुड एक्टर। नेक्स्ट, विच विलेज हैज़ बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस बाय UNWTO? तो किस विलेज को वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज UNWTO के द्वारा सिलेक्ट किया गया है? ऑप्शन ए पोचमपल्ली तेलंगाना, ऑप्शन बी लखीमपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कमलापुर उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी कोंग थोंग इन मेघालय। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए पोचमपल्ली तेलंगाना। तो आंसर है आपका पोचमपल्ली तेलंगाना। क्लियर है? सो गाइस दिस वाज फॉर द डे। आज का यहाँ पर हम सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। आपका इस सेशन को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। और जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नवंबर 4th वीक की करंट अफेयर्स वाली होगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को कॉम्पिटिटिव पीडिया जो है इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी इसे शेयर करें। इसी नोट के साथ आज की वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।